Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the first video of linear correlation, the second lesson of statistics part 1, standard 12 Gujarat board. So friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next video on the very first day. So friends, today we will see what is the weightage of this chapter in the board exam, how this chapter is divided among various sections in the board exam, and the meaning of correlation and its types. So friends, without wasting the time, let's start. So friends, chapter number 2, linear correlation in statistics part 1 of standard 12. The total weightage of this chapter is 12 marks. How these 12 marks are divided among different sections that I have shown in this table. You can see in section A, one question is asked for 1 mark. As we know, in section A, MCQs are asked. So, one MCQ will be asked for 1 mark. Then in section B, we know very short question means one line question. One question is asked in section B for 1 marks. In section C, short question for 2 marks means one question will be asked in section C for 2 marks. In section D, one short question will be asked for 3 marks. No question will be asked from section E, and one question is asked in section F for 5 marks, long sum. So the total weightage of this chapter is 12 marks. So friends, first of all, we will study what is correlation. But before knowing this, we should know what is cause-effect relationship. If we know cause-effect relationship very well, then the meaning of correlation will be very easy to understand to us. So, what is the cause-effect relationship? फ्रेंड्स, बहुत से वेरिएबल्स के बारे में हम जानते हैं. हमने बहुत से वेरिएबल्स को देखा है, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड, height and weight, income and saving, expenditure and saving, ये सभी वेरिएबल्स हैं. इन सभी वेरिएबल्स में एक वेरिएबल अगर चेंज होता है, मीन्स इफ वन वेरिएबल गेट्स चेंज, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, with the effect of that, if other variable also gets changed, then there is a cause-effect relationship between those two variables. Again I explain, अगर किसी एक वेरिएबल में किसी कारण से कोई बदलाव आता है, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक वेरिएबल में बदलाव आ रहा है, उस बदलाव के असर के कारण अगर दूसरे वेरिएबल में अगर कोई बदलाव आता है, तो उन दोनों वेरिएबल्स के बीच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, ऐसा हम समझेंगे. चलिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. Friends, first of all, note down the meaning of cause-effect relationship. If one variable gets changed, with the effect of that, other variable also gets changed, then there is a cause-effect relationship between those two variables. Let us understand this with the examples. So you can see, friend, here I have given 8 different examples. Like first, yearly rainfall and yield of crop. Friends, as we know, अगर रेनफॉल अच्छा होगा तो हमारी फसल भी अच्छी होगी. तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन हम देख सकते हैं कि अगर रेनफॉल इंक्रीज होता है, रेनफॉल अच्छा होता है, तो उसके साथ में हमारी क्रॉप भी सेम डायरेक्शन में अच्छी होगी. तो यहाँ पर क्रॉप का अच्छा होना वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है. अगर रेनफॉल अच्छा हुआ तो क्रॉप अच्छी होगी. तो इन दोनों के बीच में हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं. सेकंड एग्जांपल, इनकम एंड सेविंग. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी सेविंग भी ज़्यादा होगी. यहाँ पर आप डायरेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं. इसका अपोजिट भी आप देख सकते हैं कि अगर हमारी इनकम कम होगी तो उसके साथ साथ हमारी सेविंग भी कम होगी.
तो यहाँ हम डायरेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो इनकम और सेविंग के बीच में भी हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है ऐसा कह सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। फ्रेंड्स, यहाँ हम इन्वर्स रिलेशनशिप देख सकते हैं कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो फिर हमारी सेविंग डिक्रीज होगी, और इसके अपोजिट अगर हमारा एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है तो हमारी सेविंग इंक्रीज होगी। तो यहाँ हम इन्वर्स रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में भी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है ऐसा हम बोल सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल यू कैन सी प्राइस एंड डिमांड। फ्रेंड्स, दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 11 इन द इकोनॉमिक्स। There is an inverse relationship between price and demand. If the price increases, then demand will decrease, or if the price is decreased, then the demand will increase. So same as per expenditure and saving, in price and demand also there is an inverse relationship, and there is a cause effect relationship between price and demand also. Fifth example, price and supply. So friends, here also you will see the direct relationship. If the price will increase, with the effect of that, supply will also be increased, and if the price will decrease, then the supply will also be decreased. So here also there is a direct relationship, and there is a cause effect relationship between price and supply. Same you can see in the sales and profit. If sales is more, then profit is more, and vice versa. If sales is less, then the profit is less. So here also we can see the direct relationship and cause effect relationship also. 7 number of vehicles and number of accidents. So here also you can observe the direct relation. If vehicles will increase, then number of accident will also increase, and vice versa. If vehicles are decreased, then the number of accidents will also be reduced. And height and weight. If height will increase, then along with that weight will also increase. Here the second relation cannot be found, because height will never reduce. Height increases, and after one level it stops, it never decreases. So height and weight also we can observe the cause effect relationship. So friends, I hope you all have understood the cause effect relationship very well. So after understanding cause effect relationship, it is very easy for you to understand the define of correlation or the meaning of correlation. So here it is, if there is a cause effect relationship between two variables, then there is a correlation between those variables. So this is very simple meanings you can understand. One notable point is there, correlation is denoted by small r. It is also known as coefficient of correlation. If it is asked in the exam that the coefficient of correlation is dash, so you have to select small r. It is the coefficient of correlation. So our next topic is types of correlation. Friends, pay attention, because from types of correlation, at least one question is asked in section B or section C. So pay attention over here. There are basically three types of correlations. First, positive correlation. Second, negative correlation. And third, lack of correlation. So we will understand one by one. First of all, we will understand positive correlation. If there is a cause effect relationship but in the direct relation, as we have seen in the examples, if one variable increases, along with that other variable also increase, or if the first variable decreases, with the effect of that other variable is also decreases. So such correlation is known as positive correlation. या तो दोनों वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहे हों या दोनों वेरिएबल्स रिड्यूस हो रहे हों, घट रहे हों, तो दोनों केसेस में पॉजिटिव कॉरिलेशन होगा. नेगेटिव कॉरिलेशन में अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो उसकी इफेक्ट से
दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा, घटेगा। या इसका अपोजिट, अगर फर्स्ट वेरिएबल कम हो रहा है तो उसकी इफ़ेक्ट से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और अगर पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इस कॉरिलेशन को हम नेगेटिव कॉरिलेशन कहेंगे। एंड लैक ऑफ कॉरिलेशन में अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है, दूसरे वेरिएबल पर उसका कोई असर नहीं होता, ना वो इंक्रीज होता है ना वो डिक्रीज होता है। या इसका अपोजिट हम कहें कि अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल पर उसका कोई असर नहीं होता, मीन्स यहाँ हमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, अब हम इनके एग्जाम्पल्स और देख लेंगे। सो यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कॉरिलेशन। हाइट एंड वेट, आप जानते हैं कि हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। इनकम एंड सेविंग, इनकम बढ़ेगी सेविंग बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो सेविंग भी घटेगी। प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। एंड सेल्स एंड प्रॉफिट, अगर सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और सेल्स घटेगी तो प्रॉफिट भी घटेगा। तो यहाँ इन चारों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि सेम डायरेक्शन आपको देखने को मिलता है, या तो दोनों बढ़ रहे होते हैं या तो दोनों घट रहे होते हैं। तो इसे हम पॉजिटिव कॉरिलेशन कहेंगे। सेकंड, नेगेटिव कॉरिलेशन में हम दो एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो आपकी सेविंग घटेगी, और अगर आपका एक्सपेंडिचर घटता है तो आपकी सेविंग बढ़ेगी। और दूसरा, प्राइस एंड डिमांड। इफ़ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस, एंड इफ़ प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस। तो यहाँ पर भी हम नेगेटिव कॉरिलेशन देख सकते हैं। एंड एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ कॉरिलेशन, फ्रेंड यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स होंगे वो थोड़े फनी टाइप के एग्जाम्पल्स आप देख पाएंगे, जैसे प्राइस ऑफ गोल्ड एंड डिमांड ऑफ व्हीट। तो फ्रेंड, अगर गोल्ड का प्राइस घटता है या बढ़ता है, उससे व्हीट की डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम लैक ऑफ कॉरिलेशन देख सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल, नंबर ऑफ व्हीकल इन अहमदाबाद एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन न्यूयॉर्क। तो अहमदाबाद के व्हीकल से न्यूयॉर्क के एक्सीडेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ भी हम लैक ऑफ कॉरिलेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द टू सब पार्ट्स or two subtypes of positive correlation. There are two types of positive correlation. First, perfect positive correlation and second, partial positive correlation. तो perfect positive और partial positive क्या है ये जरा हम समझेंगे। तो यहाँ पर correlation positive है, मीन्स दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे, लेकिन उनका अगर प्रपोर्शन सेम होता है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव होते हैं, और अगर उनका प्रपोर्शन सेम नहीं होता है तो वो पार्शियल पॉजिटिव होते हैं। इसे मैंने यहाँ पर डिफाइन में लिखा है, आप जरा देख सकते हैं। इफ़ देयर इज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन द डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है और वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एंड इन द सेम प्रपोर्शन, यानी उनका जो प्रपोर्शन है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर एक वेरिएबल 10% इंक्रीज़ होता है तो दूसरा वेरिएबल भी अगर 10% इंक्रीज़ हुआ तो वहाँ पर परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन आपको देखने को मिलेगा। या अगर एक वेरिएबल 20% डिक्रीज़ हुआ तो दूसरा भी 20% डिक्रीज़ हुआ, तो वहाँ पे भी आपको परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा एक एरो के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ ये दोनों एरो आपको एक साइज़ के देखने को मिलेंगे, दोनों के दोनों सेम प्रपोर्शन में या तो इंक्रीज़ होंगे या तो डिक्रीज़ होंगे, तो उसे हम परफेक्ट पॉजिटिव कहेंगे। उसके सामने पार्शियल पॉजिटिव, इफ़ देयर इज़ अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन डायरेक्ट रिलेशनशिप बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन, बस इतना सा चेंज होगा और डिफाइन पूरी बदल जाएगी, देन इट इज़ कॉल्ड पार्शियल पॉजिटिव कॉरिलेशन। तो यहाँ अगर हम समझें तो इसके लिए अगर एक वेरिएबल ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो दूसरा इंक्रीज़ होगा लेकिन कम होगा, या एक वेरिएबल कम इंक्रीज़ हुआ और दूसरा उसकी इफ़ेक्ट से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर आप डायरेक्शन सेम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रपोर्शन सेम है, यहाँ प्रपोर्शन सेम नहीं है। दूसरी बात, परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन में
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा +1 आती है, और पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच रहती है। इसे अगर हम ग्राफिकली समझना चाहें तो भी आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव फ्लो है। दोनों वेरिएबल्स के सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर आए हों, यानी कि जो पॉजिटिव कर्व है उसी एक ही लाइन पर अगर सारे पॉइंट्स हों तो उसे हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। और अगर जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के आसपास हों, कुछ एक आध लाइन पर भी हो सकते हैं, लेकिन सारे पॉइंट एग्जैक्टली लाइन पर ना हो तो उसे हम पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। इन द सेम वे वी विल अंडरस्टैंड two subtypes of negative correlations. Those are perfect negative correlation and partial negative correlation. So यहाँ पर भी सेम तरह की डिफाइन आपको देखने को मिलेगी। If there is a cause effect relationship between variables in inverse relationship, पॉजिटिव में डायरेक्ट रिलेशनशिप था, यहाँ पर खाली एक वर्ड चेंज होगा, इनवर्स रिलेशनशिप, बट इन द सेम प्रपोर्शन, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ, दूसरा वेरिएबल उतना ही डिक्रीज हुआ, सपोज 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज, या इसका अपोजिट फर्स्ट वेरिएबल डिक्रीज होता है 10% और सेकंड वेरिएबल इंक्रीज होता है 10%, तो इसे हम परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन कहेंगे। इसके अपोजिट पार्शियल नेगेटिव में, if there is a cause effect relationship between variables in inverse relationship but यहाँ पर भी not in the same proportion, then it is called partial negative correlation। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीज, तो नेगेटिव होने की वजह से दूसरा डिक्रीज होगा लेकिन कम प्रपोर्शन में, या इसके अपोजिट में हम ले सकते हैं कि फर्स्ट अगर डिक्रीज हुआ और सेकंड इंक्रीज होता है, यहाँ पर भी आप प्रपोर्शन अलग अलग देख सकते हैं, सेम प्रपोर्शन नहीं है, तो उसे हम पार्शियल नेगेटिव कहेंगे। इसे भी अगर ग्राफिकली हम समझना चाहें तो इस तरीके से समझा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप में अगर सारे पॉइंट्स इसी एक लाइन के ऊपर अगर आए हों तो ये जो डायग्राम बनेगा वो परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन का डायग्राम बनेगा। यहाँ पर r की वैल्यू -1 रहती है, और पार्शियल नेगेटिव में जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के आसपास मिलेंगे आपको, कुछ एक आध लाइन के ऊपर भी रहेंगे लेकिन लाइन के आसपास रहेंगे, एग्जैक्टली एक लाइन पर नहीं मिलेगा। और r की जो वैल्यू है वो -1 से 0 के बीच रहेगी, यानी -0 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। अगर लैक ऑफ कॉरिलेशन को हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो पहले इसकी डिफाइन देखेंगे। इफ़ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स देन इट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ कॉरिलेशन। इसका एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं, जैसे कि नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अहमदाबाद एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन सूरत और बड़ौदा और न्यूयॉर्क। सो दिस इज़ द लैक ऑफ कॉरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। लैक ऑफ कॉरिलेशन में आर की वैल्यू वो 0 होती है, और अगर इसका डायग्राम हम बनाने जाएं तो इसके पॉइंट्स का फ्लो देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। देखिए इसके जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से स्प्रेड होते हैं कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो वहाँ हम लैक ऑफ कॉरिलेशन समझेंगे। So friends, we stop here today. In the next video, we will see the methods of correlation and the formulas of correlation and characteristics of correlation. Till then, take care, keep study and stay at home. Goodbye.